Good morning, students. Today we start chapter 1, class 12, accountancy. Chapter name is General Introduction of Partnership. In 11th class we studied about sole proprietorship, but in 12th class we studied about partnership and company. In sole proprietorship, only one person is there, he is liable for everything. But in partnership, there are two or more than two persons are there. First of all, we start the chapter with meaning of partnership. Meaning of partnership. Partnership is an association of two or more persons. Partnership is an association of two and more persons. Two or more persons who have agreed to combine. They agreed to combine their financial resources. Two persons combine their financial resources, or either three persons combine their financial resources and managerial ability. What they combine? Their financial resources and managerial ability to run a legal business. And share profit in an agreed ratio. They combine their financial resources and managerial ability for what purpose? To run a legal business and share profit in an agreed ratio. Share profit in an agreed ratio. Then the person who have entered into a partnership with one another individual. The individual are partners and collectively known as a firm. The person who have entered into a partnership with one another individually are called partners. Individually they are partner and collectively they are firm. Okay, the meaning of partnership is what? Partnership is an firm or association of two or more persons who have agreed to combine their financial resources. Combine what? Their financial resources and managerial ability for what purpose? To run a legal business. They run legal business and then they share their profit in an agreed ratio. Agreed ratio means they decided period to which ratio they distribute their profit. Share profit in an agreed ratio. The person individually are called partners and collectively are known as firm. Okay, this is the meaning of partnership. In a sole proprietorship, only one person is there who share profit and run legal business. But in partnership, there are two or more than two persons who have agreed to combine their financial resources and managerial ability to run a legal business and share profit in an agreed ratio. Then the person who have entered into a partnership with one another are called partners. They are known as partners and collectively they are known as a firm. Now come to the Act. Partnership business is governed by Indian Partnership Act 1932. What? Partnership business is governed by Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. It means that two or more persons who run the partnership business are following Indian Partnership Act 1932. What? They apply the rules of Indian Partnership Act 1932. So the question is, in the examination there is a question which act is applied to Indian Partnership Act 1932 is applied on the partnership business. Clear? The meaning of partnership is an association with two or more persons who agreed to combine their financial resources and managerial ability to run a legal business and share profit and in an agreed ratio. They are collectively known as firm and individually they are known as partner. Then partnership business is governed by Indian Partnership Act 1932. That means each and every partnership firm apply the rules of Indian Partnership Act 1932. Okay, now come to the second point, or the characteristics of partnership. What is the characteristics of partnership firm? Characteristics of partnerships. The first characteristics is two or more than two persons are there. पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप की बिजनेस में दो और दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है. तो मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50.
मतलब 2 तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए आपके 50 होने चाहिए। इफ़ मोर देन 50, अगर 50 से एक भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज 2 और मोर देन 2%। देन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। एग्रीमेंट होना ज़रूरी है उन दोनों के बीच में या तीनों के बीच में। अब बात करते हैं एग्रीमेंट दो तरह से हो सकता है। देर आर 2 टाइप्स, रिटर्न एग्रीमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट। इन रिटर्न एग्रीमेंट आगे जाकर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट्स को निपटारा आसानी से हो जाएगा, लेकिन ओरल एग्रीमेंट में कोई भी पार्टनर अपनी बात से क्या हो सकता है, पलट भी सकता है। तो रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ओरल भी है तब भी चल जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज 2 और मोर देन 2%, देन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। इट शुड बी रिटर्न एंड इट शुड बी इन ओरल फॉर्म। देन थर्ड पार्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट का शेयर होना ज़रूरी है। अब अगर उन्होंने पार्टनरशिप फंड बनाई है तो पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अगर उनका मेन पर्पस अगर किसी सोसाइटी की सर्विस देना है तो हम उनको पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए फर्म का, टू मेक प्रॉफिट। अगर सोसाइटी की सर्विस देने के लिए अगर उन्होंने कोई फर्म बनाई है या कुछ भी स्टार्ट किया है तो वो हम पार्टनरशिप में नहीं डाल सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट भी होना चाहिए और साथ साथ उनको एग्रीमेंट में डिसाइड भी करना पड़ेगा कि वो इस प्रॉफिट को किस तरह से आपस में शेयर करेंगे। क्लियर। देन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कैरिंग ऑन अ बिजनेस मीन्स लॉफुल बिजनेस। कोई लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करना होना चाहिए। जैसे अगर दो जनों ने मिलकर, दो भाइयों ने मिलकर एक मकान खरीदा, ओके। अब वो मकान अगर वो दोनों उसमें अब खुद ही रहेंगे तो वो उनका बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो मकान खरीदते हैं, ओके, देन कुछ दिन बाद वो उस मकान को बेचकर दूसरा मकान खरीदते हैं, फिर दूसरा बेचकर तीसरा खरीदते हैं, तो ये एक तरह से उनका क्या होगा, बिजनेस कहलाएगा। तो कैरिंग ऑन बिजनेस, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। एंड द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी उसके जितने भी प्राइवेट रिसोर्सेज हैं उनको आप सेल करके आपका पार्टनरशिप का पैसा क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो गई, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज 2 और मोर देन 2%, 2% is there, then more than 2%, minimum 2 and the maximum number is 50. Then agreement among partners, एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। अब एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और आपका ओरल भी हो सकता है। देन द थर्ड पॉइंट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट भी क्या करेंगे, वो आपस में शेयर करेंगे। देन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैरिंग ऑन बिजनेस। लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करना उनका मेन पर्पस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ कैसी होती है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। तो मीनिंग था कि 2 और मोर देन 2% फाइनेंशियल रिसोर्स कलेक्ट करेंगे, मैनेजरियल एबिलिटी को कलेक्ट करके क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, 2 और मोर देन 2%, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, तो अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी पे कितनी बेस होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अब वैसे तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म होती है। लेकिन कई बार अगर उन्होंने पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है, लायबिलिटी पे बेस होकर किस तरह हो सकती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड हो सकती है। अब अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो आप उसके पर्सनल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अनलिमिटेड की बात करेंगे तो पर्सनल रिसोर्सेज का यूज़ करके भी आउटसाइडर का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो देर आर 2 टाइप्स, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्म। देन बेस्ड ऑन टाइम, टाइम बेस्ड कितने तरह की हो सकती है, अगेन देर आर 2 टाइप्स, फिक्स टाइम एंड नो फिक्स टाइम। फिक्स टाइम मीन्स अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 6 मंथ तक ही बिजनेस करेंगे तो ये टाइम यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। वो 6 मंथ ख़त्म होते ही उनका टाइम बिजनेस क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। नो फिक्स टाइम में टाइम फिक्स नहीं किया, जब तक वो चाहे जब तक चलाएं, जैसे वो चाहे ख़त्म करना चाहे तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये है आपका नो फिक्स्ड टाइम। देन द थर्ड टाइप्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मीन्स पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप।
सेम है टाइम के अकॉर्डिंग ही। पार्टनरशिप एक्ट विल यानी उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जब वो चाहे जब उसको ख़त्म करे, 2 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, 4 साल बाद करे, या कंटिन्यू चलाते रहे। तो पार्टनरशिप एक्ट विल। एंड देन द सेकेंड वन इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी हो। मीन्स आप ये मान सकते हो कि उन्होंने कोई पुल बनाने का काम लिया या कोई रोड बनाने का काम लिया, तो दैट इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होगा, जैसे ही वो काम खत्म होगा उनकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देन द फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ड ऑन लीगलिटी। लीगलिटी के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, दो तरह की हो सकती है, लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल तो वही कि उनका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो लीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इलीगल पार्टनरशिप की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप फर्म कोई भी चल रही है तो वो इलीगल कब हो जाएगी। तो 2-3 अलग अलग कंडीशन है, उस कंडीशन में वो फर्म क्या बन जाती है, आपकी इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है या फर्म इलीगल हो जाती है। और वो 2-3 कंडीशन क्या है, जैसे द फर्स्ट कंडीशन इज़ इलीगल पर्पस। अब पर्पस जब उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस तो लीगल था, काम करते करते बीच में उनका पर्पस क्या बन गया, इलीगल पर्पस हो गया। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का बिजनेस करना शुरू कर दिया जो इलीगल था, जैसे स्मगलिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो बिजनेस क्या हो गया आपका, इलीगल हो गया। तो देन इन दैट कंडीशन द पार्टनरशिप बिकम इलीगल। देन द सेकेंड पॉइंट इज लेस देन 2 एंड मोर देन 50। नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स था कि कम से कम 2 होने चाहिए और मोर देन कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो कम से कम 2 हुए। अब अगर 2 में से किसी एक की डेथ हो गई तो एक ही बचा, तो प्रोप्राइटर फर्म आपका फर्म का फॉर्मेट ही चेंज होकर क्या बन गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। इन दैट केस द पार्टनरशिप इज इलीगल। ओके, देन मोर देन 50, मोर देन 50 यानी 49 हो सकता है, 50 हो सकता है। बट अगर आपने 50 होने के बाद एक भी एक्स्ट्रा ले लिया, 51 होते ही वो भी फॉर्मेट चेंज होके क्या हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। लेस देन 2 होने पर तो फॉर्मेट चेंज होके क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। जबकि मोर देन 50 होने पर फॉर्मेट चेंज होकर क्या आ जाएगा, आपका कंपनी का फॉर्मेट आ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, इलीगल बन जाएगी। ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी। अलग अलग कंट्रीज़ है, अलग अलग कंट्रीज़ ने आपस में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रखी है। अब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना है। अब आपने आपका कोई बिजनेस इस तरह से करना शुरू कर दिया कि वो इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, इन दैट कंडीशन योर फर्म बिकम इलीगल। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन। मीन्स आपके अभी तक 50% नहीं हुए थे, 49 ही थे या 48 ही थे, आपने एक पर्सन को एडमिशन दिया, आपकी कंट्री का पर्सन है, देन ओके। बट इफ़ द पर्सन इज़ एन अलाइन नेशन यानी दुश्मन के देश का पर्सन है, हमारी कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो हमारे लिए दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। तो अगर आपने पाकिस्तान के किसी सिटीज़न को आपकी फर्म में एडमिशन दे दिया है, मोर देन 50 तो नहीं हुआ, 48 और 49 ही होगा। अगर एक एडमिट होता है तो 49% ही होता है। बट पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन, वो कौन से देश का है, अलाइन नेशन या हमारे एनिमी का पर्सन है। इन दैट केस द योर बिजनेस बिकम इलीगल। तो 4 रीज़न है, पर्पस बिकम इलीगल, लेस देन 2 एंड मोर देन 50। देन द थर्ड वन इज अगेंस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी एंड देन द पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन शुड बी। अगर वहाँ पर आपने किसी अलाइन नेशन या अलाइन नेशन का मीन्स है कि आपका एनिमी कंट्री, तो एनिमी कंट्री के पर्सन को अगर आपने आपकी फर्म में एडमिशन दे दिया है तो उस कंडीशन में भी आपकी फर्म क्या हो जाएगी, या आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। ओके, देन नाउ कम टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, the written agreement among the partners is known as partnership deed. Written agreement among the partner is known as partnership deed. I think you already studied about partnership deed in 11th class in BS, but now again we start the written agreement. Written agreement मतलब written होना चाहिए agreement और पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, और वो क्या कहलाएगा, आपका पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें हो सकती हैं वो ये रही। तो फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कुछ मेन बातें हैं, बाकी और बहुत सारी बातें हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म और फर्म का
नाम होना चाहिए और फर्म का क्या होना चाहिए, उसमें एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप फर्म का नाम क्या रखोगे और फर्म को कौन सी जगह पर खोलोगे। तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। देन द सेकेंड पार्ट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर का नेम और पार्टनर के पर्सनल जो रहते हैं वो जहाँ जहाँ रहते हैं उनका एड्रेस होना चाहिए। देन थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या खरीदने बेचने का है, तो जो भी नेचर है वो नेचर पहले से डिसाइड होकर लिख देना पड़ेगा। देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में एक और नया पार्टनर आ जाए या फ्यूचर में जाके किसी भी तरह का कोई भी अगर कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो अगर आपका पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी रिटर्न में है तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि अगर 2 पार्टनर है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 है तो वो इक्वल करेंगे या कौन से रेशो में करेंगे, ये सारी बातें पहले से लिखी होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने मीनिंग में पढ़ा कि उनका क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंबाइन हो रहे हैं मीन्स अगर 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, तो दे ऑल ब्रिंग देयर कैपिटल। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ए कितनी कैपिटल लाएगा, बी कितनी कैपिटल लेके आएगा, सी कितनी कैपिटल लेके आएगा, ये भी पहले से ही हमें पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिख देना पड़ेगा। फिर अगर वो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बात रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या कितने % पे देंगे, और अगर नहीं देना है तो बात ही खत्म। तो नहीं देना है वो भी कैपिटल डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर देना है तो कितने % से देना है वो भी डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ हम कैपिटल की बात कर रहे हैं वहाँ ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, कैपिटल से रिलेटेड ही नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में हम 11 में पढ़ चुके हैं, ड्राइंग्स क्या होती है वो सारा। तो ड्राइंग्स किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मंथली करेंगे, ईयरली करेंगे या 6 मंथ में करेंगे या किस तरह से करेंगे, वो सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में रिटर्न एग्रीमेंट में लिखी हुई होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में पूरी बातें क्लियर होनी चाहिए कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे या नहीं लेंगे, और लेंगे तो वापस वही बात आ रही है कि कितने % से हम लेंगे, तो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। फिर 9 पॉइंट है सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू पार्टनर्स। अब अगर कोई पार्टनर है, ज़रूरी नहीं है कि आपके 4 पार्टनर है या 4 या 5 पार्टनर्स है, तो रोज़ 5 के 5 पार्टनर्स रोज़ बिजनेस संभालने आए। हो सकता है कोई 1 या 2 पार्टनर बिजनेस संभालने आए, तो क्या उस जो 1 या 2 आदमी जो रोज़ आ रहा है बिज़नेस को संभालने के लिए, क्या हम उसको सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, ये बातें भी हमें पार्टनरशिप डीड में लिख देनी चाहिए ताकि आगे जाकर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। देन ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की ऑडिट होगी तो कैसे होगी, कौन करेगा, ये ऑडिट मीन्स है कंपनी का चेक करना, अकाउंट को चेक करना। तो ऑडिटिंग होगी तो किस तरह से होगी, ईयरली होगी या 6 मंथ पे होगी या क्वार्टरली होगी, किस तरह से होगी, वो भी बातें पहले से पार्टनरशिप डीड में लिख देनी चाहिए। देन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जहाँ हम फिक्स पार्टनरशिप की बात करें, मैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में फिक्स पार्टनरशिप थी। तो फिक्स पार्टनरशिप में ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ड्यूरेशन कितनी होगी, नहीं होगी, तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी हमें पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। अगर फिक्स्ड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, लेकिन जहाँ फिक्स की बात कर रहे हैं कि हम 6 मंथ में पूरी करेंगे या किस तरह से पूरा करेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखा हुआ होना चाहिए। देन मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो कौन कौन से मेथड से किस तरह से लिखा जाएगा वो होगा। 2 मेथड होते हैं, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड मेथड। तो पहले से डिसाइड कर देंगे पार्टनर्स की वो कौन से मेथड से उसको रखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाएगा वो मेथड भी पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनर्स लोन। एक तो होता है कैपिटल और एक होता है आपका लोन। कैपिटल तो देनी ही है, लेकिन अगर फार्म को पार्टनर क्या दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, तो लोन देंगे तो लोन पर उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी वो पहले से। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एक बात बता दूं कि चाहे आपने पार्टनरशिप डीड बनाई हो चाहे आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो, आपको लोन पर इंटरेस्ट हर बार चुकाना ही तो देना ही पड़ेगा। तो पहले से आपको परसेंटेज डिसाइड कर देना चाहिए कि कितने % से इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना है। फिर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब 2 जने हैं, आगे जाके बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी नए पार्टनर को एडमिट करें,
तो एडमिशन पर क्या क्राइटेरिया रहेगा, 3 है, 4 है, कोई एक रिटायर हो रहा है तो जो बचे हुए हैं उनके लिए क्या रहेगा, या वो जो जाएगा उनको किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, वो पॉइंट। फिर आती है डेथ की पॉइंट, डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो जो बचे हुए हैं वो अपने बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बातें भी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी ज़रूरी है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स थे जो पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए वो क्या है, एक तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा हुआ होना ही चाहिए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए, सैलरी कमीशन और बोनस के बारे में भी पहले से रिटर्न में होना चाहिए, और एक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तब तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया है और आपने ओरली कहा था या वर्बली ही बात करी है, तो आगे जाके अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो मैंने अभी बताया कि आपको पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर इन सब के बारे में आपने लिखा हुआ नहीं है तो क्या क्या रूल अप्लाई होंगे, वो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि जब तक आपको एब्सेंस पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के रूल्स नहीं आएंगे आगे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट, अभी तक तो सारा हमने क्या क्लियर किया, थ्योरी क्वेश्चन क्लियर किया कि पार्टनरशिप क्या होती है, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टाइप्स क्या होती है, फिर आता है आपका पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें। अब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट टाइप्स ऑफ रूल विल बी अप्लाइड, ये हमारा आगे वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट टाइप्स ऑफ रूल्स बी अप्लाइड। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मीन्स एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी आपका रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वर्बली हुआ है, आगे फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो कौन कौन से रूल अप्लाइड होंगे। फर्स्ट रूल इज़ प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अब अगर आपने वर्बली कुछ भी डिसाइड किया हो, लेकिन जो क्योंकि वो वर्बली था, रिटर्न में नहीं था, तो अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो रूल्स क्या आएगा, फर्स्ट रूल इज़ द प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इफ़ देर आर 3 पार्टनर दे शेयर इक्वल प्रॉफिट, देन देर आर 4 पार्टनर्स दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। अगर उन्होंने कुछ भी रेशो डिसाइड किया था तो ओरल होने की कंडीशन में हम वो नहीं लगाएंगे, हम रूल्स क्या लगाएंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रिटर्न होगा तो जो उन्होंने रूल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे या रिटर्न की कंडीशन पे जो, लेकिन अगर रिटर्न नहीं हो रहा है, ओरल उन्होंने डिसाइड किया था और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो कोर्ट में क्या फैसला आएगा कि प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट को किस तरह शेयर किया जाए, इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है, हर पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट मिल जाएगा। देन द सेकंड पॉइंट इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, रिटर्न में था तो हम दे सकते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें ये कहा था कि वो सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए, लेकिन अगर लिखी हुई नहीं है और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो कोर्ट ये देगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, प्रॉफिट किस तरह इक्वल करेंगे, प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो तो आप किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं ले सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट चार्ज। देन द फोर्थ पॉइंट, नो पार्टनर इज एंटाइटल टू एनी टाइप ऑफ सैलरी एंड कमीशन। अगर वो पार्टनर रोज जा रहा है तब भी आप उसको किसी तरह की एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर ही मिलेगा। ये कौन सी कंडीशन में, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो या उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट किस तरह से किया हुआ हो, ओरल किया हुआ हो तो होगा। तो नो एंड पार्टनर्स एंटाइटल टू एनी सैलरी एंड कमीशन, किसी तरह का सैलरी और कमीशन उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब आते हैं लोन की कंडीशन। लोन अगर उसने दिया है तो लोन पर फिक्स्ड है कि 6% की रेट से उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका डीड है चाहे आपकी डीड नहीं है। आपने ओरल डिसाइड किया है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा लोन दे रखा है, एक्स्ट्रा और लोन के पैसे दे रखे, तो उस लोन पर उसको कितने % की दर की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% की रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा। ओके, 6% मिलेगा। देन
this 6 and 7 point is theory point. Each partner can participate in the conduct of business. सभी पार्टनर बिजनेस कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब चाहे जब वो बिजनेस को देख सकते हैं, जब चाहे जब वो आ सकते हैं. तो ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस. देन द लास्ट एंड द 7th पॉइंट इज ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म. बुक्स ऑफ फर्म मीन्स अकाउंट्स बुक्स. अकाउंट्स की बुक को वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसकी फ़ोटो कॉपी, कैन टेक अ कॉपी, कॉपी मीन्स उसकी फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, जब चाहे वो अपने अकाउंट्स की फ़ोटो कॉपी मांग सकते हैं. तो सभी पार्टनर रोज़ आ भी सकते हैं, नहीं आए तो वो जब चाहे जब आ सकते हैं. और सभी पार्टनर को क्या मिलेगा, बुक्स का इंस्पेक्शन करने का राइट भी है और वो बुक्स पे कॉपी भी लेने का उनको राइट है. तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ये तो थियोटिकल पॉइंट है. आपका जो मेन पोर्शन है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे. पार्टनरशिप डीड है तो ये रूल अप्लाइड नहीं होंगे. जो डीड में लिखे हुए थे रिटर्न में तो वही अप्लाई होंगे. लेकिन अगर एब्सेंट है, ये नहीं है और वर्बली डिसाइड हुआ और कोई डिस्प्यूट होता है तो ये रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट रूल इज प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड, देन थर्ड no partners entitled to any salary, commission and bonus work. Then the 5th point is if the partner gives loan to the firm. If the partner gave loan, यानी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस लोन पर उसको कितने % इंटरेस्ट मिलेगा, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा. ये फिक्स है, 6% आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका रिटर्न एग्रीमेंट है चाहे आपका वर्बल एग्रीमेंट है. थैंक यू. कल हम इसी से रिलेटेड आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.